Yes, you are, Ashima. So hi everyone, I hope you and your families are safe. We are pleased to host today's webinar on understanding the concept of hypothyroid diet management. Just to give you a brief background, Dr. Shikha's NutriHealth was founded in 1998 by Dr. Shikha Sharma, a visionary doctor from Maulana Azad Medical College with the vision to educate and spread health. Now with over 21 years of experience, we have gained expertise in weight management and lifestyle issues management. I'm happy to share that we provide services across the world and are sharing over 2 lakh diet plans every month. In fact, our company NutriHealth has thousands of clients in India and abroad who are under the treatment of multiple lifestyle disorders. At NutriHealth, our team has about 200 members dedicated to serving people across the world. Just to share how we will proceed with the webinar, so I have Dr. Shikha Sharma with me. Maybe you all know her as celebrity health expert who has advised ex-prime ministers, chief ministers, Bollywood actresses, business tycoons, and singers. But before becoming well known in the area of nutrition and preventive healthcare, she worked as a medical doctor in the intensive care unit of GB Fund. When we think of Dr. Shikha Sharma, we normally associate her with weight loss diet. But actually, she is a medical doctor with deep interest in nutrition and prevention. I have Dr. Reena Rawat with me, who heads nutrition and research vertical at Dr. Shikha's NutriHealth. She is a qualified BAMS Ayurveda doctor with a rich experience of over 14 years. I have two of my guests, Ms. Namita and Ms. Aslam. Ms. Namita has joined our Vedic nutrition course, and Ms. Aslam is a part of our nutrition services. Now, without any delay, I will hand over this webinar to Dr. Shikha Sharma. Thank you, Ashima. And a very warm welcome to all our panelists, Ms. Namita, Ms. Aslam, and of course, my colleague, Dr. Reena. A very warm welcome, and it's a pleasure to host you today on this webinar. As we know that COVID has taught us that there is nothing bigger than health, and health is the true wealth. And today, all over the world, one thing which is coming out very clearly, that traditional sciences in which we use herbs like tulsi, like amla, like turmeric, the world over, people are now curious to know that how these herbs have helped Indians to actually build an immunity. And because within India, COVID has had the least negative impact compared to many other countries. So with that, we want to today begin our webinar by discussing that how in many chronic conditions, which could be hypothyroidism or which could be any other condition also, that natural lifestyle, natural herbs can help us in a major way along with whatever medication we are taking to have a very high quality of life and also to manage the condition in a way that it doesn't increase. In fact, it regresses or reduces whatever is possible. So first I'll come over to Ms. Namita. And Ms. Namita, I believe you had joined our course, right? So, so which city are you from? And yes, which city are you? Hi, doctor. Hi, doctor. I'm from Delhi, New Delhi, and I had joined the beginners course, Vedic beginners course. Right. So my first question would be that what was your motivation, inspiration to do this academic course with us? And second would be that how was your experience? What were the things you found interesting to learn? What you didn't know before? Okay, coming to your first question, doctor, actually, I am mostly from my childhood, I'm inclined towards nutrition and healthy diet, actually. And when I came to know about this through Instagram, that you are giving a very good combination of nutrition and Ayurveda. So I was surely that this is a deadly combination and I have to join this course. So doctor, when I joined this and there was a person, Neetu, the coordinator, she guided me so well that I have to join this beginners course in order to understand my body. Basically, I'm a thyroid patient and I was having a lot of gastric problem. So doctor, when I came to know about those course and I joined it, I knew that what was my fault, where I was going wrong. Because जैसे कहते हैं ना, सब कुछ सबके लिए नहीं बना होता. I never knew that raw vegetables I couldn't have throughout the day. And I was so fond of salads and मुझे ये भी नहीं पता था कि spicy herbs भी होते हैं.
So वो ये ना, माँ किसी को बादी किसी को स्वादी, वो वाली बात है. तो I came to know about आपके कोर्स से ही, and I'm pretty happy, very happy कि I could treat myself with all these whatever tips the doctors had taught me. And moreover, doctor, I could not take milk at all, and I'm fond of milk, but I could not take. Gas ho jati thi. But Dr. Shetty, she explained that take cow milk with some antidotes. And I am fond of coffee also, so that also I couldn't take it. When she advised me antidotes coffee mein dal ke lene ki, now I can have everything. Matlab, I could understand what I can have and I cannot have, and I could cure my health in this 1 month only. Oh, wonderful, wonderful. And over here, I want to add that God has gifted each one of us a fabulous, you can say, a Mercedes or a Jaguar, and that is our own bodies. And but we don't have a manual for that. We don't have a manual to say that what we should be putting in, what would be good for us, what would work for us. And normally in schools or colleges, it is not taught. In fact, you'll be surprised to know that nutrition is not taught in even medical college. So what happens is many times we really don't know the deep information about what would suit us, what would not suit us, and our whole life goes in trial and error. And that is why what we realized is that if people have access to personalized nutrition, that is, they know what would work for them, and that is the reason that we call our process called nutrigenetics, which is nutrition according to your personal body type or your personal nature or your DNA. So this course was designed for people who have interest in knowing that what would work for them, and with that they would be able to actually control a lot of I would say mild disorders. I mean, things like gas or acidity or headache or many other mild conditions for which many people still take medicines or over-the-counter medicines. So this is really good to know. And the Doctor, second, my lactose-free ka dabba is out of the house now. okay, I don't get that lactose-free Tetra packs. It's out of the house. wonderful. Thanks to you guys. Wonderful. So the second question would be, I'm sure many people must be thinking that is it difficult? Is this course difficult to understand? Is it difficult to assimilate? Suppose there's somebody who's not from the science background. They have done some other course or education. Would they be able to understand? So did you find it interesting or did you find it easy to understand? Definitely, doctor. It was very much interesting. If you have interest in the nutrition and you love your body, you can actually go for it. And the doctors like Nivedita, Dr. Shetty, Dr. Swati, they were, they made it a point that we understood each and every single thing. And it is a very simple thing. Like it's आपके kitchen में जैसे pharmacy है, उसी को समझना है. And they made it a point बार बार पूछ के questions भी पूछते थे हमसे कि did you understand, अच्छा अब ये इस question का ये answer बताना क्या है. So it was very interesting, and I think I found it very interesting. Every day I was attracted to read it again and again and again. Very fascinating, very fascinating. And it's a Yeah. it's a joy to know that actually you benefited and you understood and enjoyed the course, because that was our main goal, was to empower people and put health in their hands so that with simple things they're able to improve their health. Doctor, this is a simple tell thing. me- Like I started taking for my gas, I started taking that ajwain and jeera ka pani. And I told my mother-in-law कि उनको बहुत गैस होती थी, तो मैंने कहा मम्मा एक दिन आपको जीरा पानी और वो डाल के देती हूँ, रात को भिगो दिया. मॉर्निंग में I started giving 2-3 days to her, and she was like, भला हो बस तेरा जो तूने मुझे ना ये पानी दे दिया, मुझे गैस ही नहीं होती पूरे दिन. So I'm getting blessings from my elders and my friends कि भाई अच्छी चीज आपने बताई है. So that way also thankful to you guys कि आप लोगों ने इतना अच्छा कोर्स डिजाइन किया. Wonderful, wonderful. And today we have another client with us, another Miss Aslam. So Miss Aslam, are you able to hear me? Yes. So my first question to you, Miss Aslam, would be: which city are you from, or and which are you from India? Are you from another country? Currently, where are you staying? अभी तो मैं नवी मुंबई में रह रही हूँ और मैंने ये वेट लॉस के लिए ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था आपका. Wonderful.
तो जैसे कि यू मेंशन कि आप बॉम्बे में हैं, तो नॉर्मली कई लोगों को डाउट होता है कि देखिए हम बॉम्बे में हैं और ये जो कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये दिल्ली की है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो पाएगा, नहीं हो नहीं, ऐसा पाएगा। वो एक्चुअली मैं मतलब गूगल पे सर्च कर रही थी कुछ ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, तो मैंने आपका जैसे ये देखा, आपका एडवर्टिजमेंट देखा, तो फिर मैंने अपना फोन नंबर और नाम वहां पे डाल के छोड़ दिया। तो फिर आपके रिप्रेजेंटेटिव ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो उनकी बातों से मुझे लगा कि ये प्रोग्राम मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो फिर मैं मतलब उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया इस प्रोग्राम के लिए। तो जी। मैंने जब स्टार्ट किया था, तो अभी मैंने लास्ट ईयर से अभी तक अभी तो पिछले 2-3 महीने से मेरा मतलब एक मेंटेनेंस वाला ही ये चल रहा है, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 25 kg मैंने वेट लॉस किया। क्योंकि जब वंडरफुल। मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा वेट 90.2 था और अभी मेरा वेट 63.7 है। फैंटास्टिक, 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 आई मीन दिस इज अमेजिंग, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। और और मारिया मारिया भट्ट मुझे गाइड करती हैं, वो बहुत प्यारी लेडी है वो जो है। और मतलब बहुत अच्छे से थ्रू आउट उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे अच्छा गाइडेंस दिया। और एक चीज मुझे आपके डाइट में बहुत एक बात अच्छी लगी कि उसमें वेरिएशन है। नहीं तो एक जैसी डाइट लेते लेते एक पॉइंट पे हम लोग उसको मतलब फिर लेने का मन नहीं करता है, तो गिव अप कर देते हैं, वो सेम 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 अगर रिपीट होता रहता है। तो आपके डाइट में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो वो कभी बोर नहीं होते हैं वो, और हर चीज खा सकते हैं उसको। सिर्फ उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको सही वे क्या है, वैसे आप बना के उसको लो। लेकिन कोई भी चीज रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब बहुत फ्यू चीजें हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। मोस्टली तो जो भी है फ्रूट्स हैं, ये है, सब हम खा सकते हैं, वेजिटेबल्स। नॉन वेज भी है आपके डाइट में, क्योंकि मैं तो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन रही हूँ। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, मतलब आपके डाइट प्लान से मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो जैसे कई बार जब लोग वजन कम करने की बात सोचते हैं, तो पहले जो उनके दिमाग में एक डाउट आता है कि अरे ये तो कम खाना पड़ेगा और फिर मतलब भूखे रहना पड़ेगा, या कैसे होगा। तो कई लोग तो डर के मारे करते ही नहीं है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या था, वेट ज्यादा होने की वजह से मुझे प्रॉब्लम भी होने लगी थी। क्योंकि अभी मतलब एज भी मेरी धीरे धीरे, अभी मैं 50s में आ गई हूँ। एज बढ़ने से भी बहुत सी प्रॉब्लम शुरू होती हैं, और उसके और अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो उससे वो और ऐड ऑन हो जाती हैं प्रॉब्लम्स जो है। तो मुझे खुद लगा कि नहीं, मुझे मतलब अब, पहले मेरा वेट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन अचानक से मुझे अर्थराइटिस हो गई बहुत यंग एज में। मुझे मतलब मुझे 40s में ही अर्थराइटिस हो गई। तो 1-2 साल तो मैं काफी डिप्रेशन में थी। फिर उसके बाद से वो डिप्रेशन में मेरी जो टेंडेंसी है, मैं खाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो उसके बाद से मेरा वेट 70 से सीधे 90 पे पहुंच गया, मेरा वेट जो है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मतलब मेरे हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है। तो फिर मैंने उस चीज को ओवरकम किया। और फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब वेट अपना मतलब वेट लॉस करना है। तो काफी मैंने सर्च किया, ऑनलाइन भी किया, ऐसे भी। तो जैसे जब मैंने आपका प्लान स्टार्ट किया, तो मुझे काफी, फर्स्ट टाइम तो मैंने 3 मंथ्स के लिए लिया था। लेकिन जैसे जैसे ये मतलब वक्त आगे बढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये काफी बेनिफिशियल है मेरे लिए। तो मैं उसको एक्सटेंड करती गई। और मुझे एक और भी चीज कहनी है, मैंने एक रेफरेंस दिया था, तो मुझे 1 मंथ का प्लान फ्री मिल गया, उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी आप लोगों को। तो ये है ना, तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। और मारिया भट्ट से मैं बहुत खुश हूँ, वो मतलब काफी अच्छे से उन्होंने मुझे गाइड किया है थ्रू आउट जो मेरी जर्नी रही है उसमें। जी। तो थैंक यू सो मच। नहीं, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल्स में काम करती थी, जीबी हाँ पंत जी। में, तो उस समय मेरे दिमाग में एक ही चीज आती थी कि जो लोग हमारे पास उस टाइम आईसीयू में हार्ट अटैक के साथ आते थे, और हाँ हमें जी। यही लगता था कि एज डॉक्टर्स ये बहुत लेट आए हैं हमारे पास, अगर थोड़ा पहले आते तो शायद इनका 100% रिकवरी हो जाती। बट हाँ जी। अगर सीनियर एज में मल्टीपल वेन आर्टरीज ब्लॉक हो जाए, फिर हार्ट अटैक हो, तो हार्ट की कंडीशन डिक्रीज हो जाती है, उसका जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, या हार्ट का जो मसल है उसकी स्ट्रेंथ हाँ जी। खत्म हाँ होनी जी, वो शुरू तो होती है। जी जी। तो आज
तो उसी से ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है वहीं से शुरू हुआ कि ऐसी एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि एक्चुअली लोगों को समय पे उनके खाने पीने को इम्प्रूव करके उनकी लाइफस्टाइल में तब्दीली लाके उनको हेल्दी बना पाए, ताकि हाँ जी, कोई ऐसी सिचुएशन आए ही ना कि कोई इमरजेंसी या कोई इस तरह से किसी को फेस करना पड़े। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए जो आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने एक ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ, एक टेलीफोनिक प्रोग्राम के साथ 30 किलोज भी लूज किया, अपनी हेल्थ में भी आपने इम्प्रूवमेंट लाया। तो हाँ यानी जी, आपने खाने पीने को ही एक मेडिसिन के रूप में, या खाने पीने से ही, जैसे हिपोक्रेटिस एक जो मॉडर्न मेडिसिन के फादर कहा जाता है उन्हें, उन्होंने हाँ कहा जी, था फूड बी योर मेडिसिन एंड यू विल नॉट नीड मेडिसिन। सो फूड से ही आपने अपनी हीलिंग करी, फूड से ही आपने अपनी हाँ वापस जी। हेल्थ दे। एक्चुअली अभी हमारी फूड हैबिट जो अभी खराब हो रही है, वो हमारे मॉडर्न लाइफ स्टाइल का भी नतीजा है। क्योंकि हम जब छोटे थे तो ये जंक फूड का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अभी ये बड़ा मतलब बहुत आपको हर चौराहे पे मिल जाएगा जंक फूड। बर्गर की शॉप, पिज्जा की शॉप, मतलब हर रेंज में आपको अवेलेबल है। तो ये सब इनका भी बहुत हमारे मतलब इस पे हेल्थ पर, हमारे डाइट पे बहुत ज्यादा इनका मतलब इन्फ्लुएंस रहा है। और अभी मैं धीरे धीरे देख रही हूँ कि वापस इंडियन लोग अपने जो उनका जो बेसिक डाइट रहा है उस पे वापस आ रहे हैं, कि अपने इंडियन डाइट को है ना प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस चाहिए होती है, और गाइड करने के लिए कोई ऐसा चाहिए होता है जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके। तो वो बिल्कुल, गाइडेंस मुझे आपके पास से मिले। तो बिल्कुल। तो जितने भी आपको प्लान्स मिले, और जैसे आपको न्यूट्रिशनिस्ट ने गाइडेंस कंटिन्यूअसली दी, उसमें से आपको सबसे अच्छा या आपका फेवरेट प्लान या फेवरेट मेन्यू या फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा तो इसके प्लान की वजह से मैंने खुद भी बहुत से डाइट फूड इन्वेंट कर लिए हैं, कि उसको मतलब कम ऑयल, कम इसमें मैं कैसे उसको टेस्टी बना के खा सकती हूँ। क्योंकि मैं कुकिंग खुद करती हूँ, तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मतलब उसमें वेरिएशन लाती रहती हूँ। वो तरीका मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या खाना है, कितना खाना है। और मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है आपके डाइट के लिए, कि आप डिनर जल्दी करो, मतलब हर मील आप अपना टाइमली लो, उसमें आप Aguilera, this is the botanical name. This is easy. बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो समय टाइम से खाना खाना, हाँ समय जी, से हाँ खाना जी, खाना, सही वक़्त वो पे खाना खाना, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें लगती हैं, बट इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। हाँ जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे। तो तो एक और सवाल आपसे बिफोर आई गो टू डॉक्टर रीना, कि हाँ जी, जैसे आपकी जो प्लान्स है सारे आपको मोबाइल ऐप में भेजी जाती थी, आपकी जो विदिक ऐप है उसमें मोबाइल ऐप में आपको भेजी जाती थी, तो उसको आपको एक्सेस करना या यूज करने में कोई दिक्कत आई हो या कोई नहीं, तकलीफ? ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई। स्टार्टिंग में एक दो दिन थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा वो उसको इन्वेंट करना पड़ता है, आपको सर्च करना पड़ता है। उसके बाद से इजीली मैंने करना शुरू कर दिया, और मारिया ने मैंने मुझे काफी गाइड किया। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता था तो वो मुझे एक्सप्लेन कर देते थे कि आप मतलब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ऐसे करके मतलब इस चीज को कर सकते हो। तो फिर बाद में, अभी तो मैं प्रो हो गई हूँ उन सब चीजों में। ग्रेट टू हियर। तो आपको, आपकी तो फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके जान पहचान के लोग तो आपको देख के एकदम सरप्राइज हाँ, होंगे। मैंने काफी लोगों को रिकमेंड भी किया था, लेकिन एक मतलब ये है कि वो एक्चुअली क्या है कि ये सब प्लान के लिए आपको फाइनेंशियली साउंड होना भी जरूरी है। तो ये तो एक फैक्ट है। तो बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन फिर वो चार्जेस की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। जी, लेकिन जिनको करना होता है वो अपना कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत से लोग, ये भी वो आपका कहना सही है कि पता नहीं, जैसे कहते हैं कि मुझसे ये डाइट फूड नहीं खाया जाएगा। मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो वैसा डाइट फूड नहीं है, या डाइट फूड खा के हम भूखे रह जाएंगे, मतलब मेरा पेट नहीं भरता है, मैं अच्छा नहीं फील करती हूँ। तो मैंने कहा ऐसा नहीं। आप स्टार्टिंग में मुझे भी एक दो दिन लगा, वो तो आपकी तो हर चीज माइंड से कंट्रोल होती है ना। तो स्टार्टिंग में मुझे भी एक दो दिन ऐसा लगा कि अरे फीलिंग नहीं हो रही है। तो मारिया ने कहा नहीं मैम, आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है, एक दो दिन के बाद सब नॉर्मल लगने लगेगा।
तो फिर वो धीरे धीरे अब मुझे कम खाने की ही आदत हो गई है, मैं ज्यादा खा ही नहीं पाती, मतलब जितने कम इन द सेंस जितनी क्वांटिटी में मुझे खाना चाहिए उतना खाने की, क्योंकि बहुत बार हम लोगों को पता नहीं होता है तो ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं हम लोग, तो वो प्रॉब्लम होती है। जी जी। So, Dr. Reena, can you hear me, Dr. Reena? Yes, ma'am. हाँ, शेयर कि जैसे हाइपोथायरॉइड जो लोग होते हैं जिनका थायराइड लेवल्स कम होता है, तो ऐसे क्या चीजें हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए, और ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जो उन्हें खाने चाहिए जो उनके किचन में ही मौजूद हैं, किचन में ही प्रेजेंट है? सो हाइपोथायरॉइड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। लाइक आपका जो थायराइड हार्मोन है उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसका कोई कॉज नहीं पता होता है। It is not something that it is a viral or a bacteria. It is not like that. So the cause is idiopathic. So ये सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदतों से ही जुड़ी हुई हैं। So in case अगर किसी को हाइपोथायरॉइड की कंडीशन है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्हें अपनी डाइट में कम लेनी है और अवॉइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल रिफाइंड फ्लावर। सो रिफाइंड फ्लावर इज समथिंग जो अवेलेबल होता है आपके जंक फूड, जैसे अभी हमने बात की। इसके अलावा भी लाइक जो आप ब्रेड्स ले रहे हैं, आप बिस्किट्स ले रहे हैं, और इफ यू आर टेकिंग पास्ताज ऑल्सो, सो इन वेरियस फॉर्म्स यू विल सी दैट इट इज ओनली द रिफाइंड फ्लावर दैट यू आर हैविंग इन योर डाइट। उसी तरह से दूसरी चीज जो रिस्ट्रिक्ट करनी है हाइपोथायरॉइड में आपको, दैट इज द एक्सेसिव इंटेक ऑफ सॉल्ट। थायराइड पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लेन करते हैं कि उनको बहुत स्वेलिंग है बॉडी में, बहुत वाटर रिटेंशन है उनकी बॉडी में, और जिसकी वजह से कई बार वो पानी पीना भी कम कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी कि बॉडी में जो आपकी वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द सोडियम कंटेंट। तो जो हम सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, रेगुलर जो हम व्हाइट सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, इट हैज लॉट ऑफ सोडियम इन इट। सो टेबल सॉल्ट की जगह, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, apart from using salt, we can use, there are multiple option, like आप black pepper use कर सकते हैं, आप rock salt उसमें add on कर सकते हैं limited quantities. Similarly, there are various herbs that can be incorporated, like amla powder, because salt का consumption normally हम लोग salads के ऊपर, fruits के ऊपर इस तरह से करते हैं। तो replace your regular salt with some amla powder, or you can put some black pepper powder over your salad. उससे आपको जो डाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होगा व्हेन यू आर कंज्यूमिंग इट विद स्पाइसेस। तीसरी चीज जो इनके आपके हाइपोथायरॉइड के पेशेंट को प्रॉब्लम करती है इज कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी स्लगिश हो जाता है। सो व्हाट दे जनरली डू, वो क्या करते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए दे स्टार्ट टेकिंग सम लैक्सेटिव। यहाँ पे हमें वर्क करना है अपना मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में। सो फर्स्ट थिंग इज द कंजम्पशन ऑफ ल्यूकवार्म वाटर। So throughout the day, instead of having cold water or room temperature water, take lukewarm water throughout the day. Then start taking triphala, because triphala is a herb which contains amla, bibhitiki and haritaki, which is again a rasayan to your body. It nourishes your body. जितने भी आपके body tissues हैं उनको nourish करता है triphala. स्पेशली हाइपोथायरॉइड में, बिकॉज उनकी स्किन और हेयर जो होती है वो बहुत ड्राई होने लगती है। सो त्रिफला इज वेरी इफेक्टिव फॉर अ हाइपोथायरॉइड पेशेंट, स्किन, हेयर के लिए भी और आपका इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी। एंड फोर्थ थिंग दैट यू शुड अवॉइड इज डू नॉट कट डाउन ऑन योर वाटर इनटेक, बिकॉज कई बार थायराइड पेशेंट्स को लगता है कि हमें पानी कम पीना है बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत वाटर रिटेन हो रहा है। सो मेक श्योर यू टेक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे इन योर डाइट। एंड इन टर्म्स ऑफ हर्ब्स, लाइक जैसे अभी हमने बात करी है कि हमें थायराइड, हाइपोथायराइड कंडीशन में आपका मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो रहा है, तो आपको कुछ हर्ब्स इनकॉर्पोरेट करने हैं जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करें। फॉर एग्जांपल ब्लैक पेपर। सो ब्लैक पेपर कैन बी कंज्यूम, लाइक सैलेड के ऊपर आप उसको डाल के ले सकते हैं, और आप उसे अपना जो कट फ्रूट्स हैं उसके ऊपर डाल के ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेथी दाना वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर वाटर रिटेंशन ऑल्सो. So you can soak 1 teaspoon of fenugreek seeds overnight in a glass of water, and morning mein you can consume that water.
Similarly, coriander seed water is also very effective for water retention. So you can soak 1 teaspoon of coriander seeds in a glass of water overnight and you can take it. So there are various herbs which are available in your kitchen. You just have to start consuming it and listen to your body. Like sometimes it happens a particular herb, your body is not comfortable. So do not take something which you don't feel comfortable with. Correct. So, Ashima, if you can show the Vedic App Academy course, and I want to share over here कि Vedic App Academy का what was the purpose, what was the philosophy behind opening this academy, online academy? हमको ये लगा as an organization कि जो हमारे traditional sciences हैं, Vedas हैं, उसमें जो इतनी अच्छी knowledge है, वो अनफॉर्चुनेटली लोगों को नहीं पता है और वो जानते नहीं है, क्योंकि मॉडर्न न्यूट्रिशन में वैदिक न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाया जाता है। और अदरवाइज ऑल्सो वैदिक न्यूट्रिशन लोग अपनी नानी दादी से कुछ कुछ तो जानते हैं, मगर वो पूरा जो डिटेल है वो नहीं पता। तो दिस वाज द होल पर्पस कि इफ पीपल कैन लर्न फ्रॉम द एकेडमी एंड एक्चुअली मैनेज नॉट ओनली देयर ओन हेल्थ बट देयर फैमिलीज हेल्थ ऑल्सो, it will go a very long way in preventing many disorders, many conditions. जैसे आप सब जानते ही हैं कि जो इम्यूनिटी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोविड से बचने के लिए और कई बीमारियों से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। और आयुर्वेद में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई चीजें, कई हर्ब्स, कई तरह के फूड रिकमेंडेड हैं, मगर इतनी जो इजीली आयुर्वेद में जो चीज बताई गई है वो लोगों तक पहुंचाएं कैसे? हमारा जो सबसे बड़ा दिमाग में एक डाउट था, क्वेश्चन था कि आयुर्वेद में इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं ट्रेडिशनल साइंसेस में, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाएं। तो दैट वाज द फंडामेंटल हाउ वी स्टार्टेड कि एक एकेडमी खोली जाए जिससे कि घर घर तक ये नॉलेज पहुंचे कि आप अपने रसोई में, अपने किचन में जो हर्ब्स हैं, जो आपकी जैसे दालचीनी है या अदरक है, इलायची है, लौंग है, केसर है, तुलसी है, आंवला है, इसको कैसे एज फॉर थेरेप्यूटिक हीलिंग, फॉर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, फॉर कंट्रोलिंग थायराइड, ये सारी चीजें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसमें जैसे कि पहले भी बात हुई है कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपको साइंस बैकग्राउंड का ही होना चाहिए। इसमें दो तरह के कोर्सेज हैं। वन इज फॉर प्रोफेशनल्स जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं या एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं या फिटनेस ट्रेनर्स हैं जो इस फील्ड में हैं और वो सीखना चाहते हैं। और जो दूसरा कोर्स है, इट इज ओपन फॉर एवरीबडी, जो कि सिर्फ 10 ही दिन का कोर्स है, इट्स ओनली फॉर 10 days, एंड आप इसमें सीख सकते हैं कि आप अपने हेल्थ को कैसे लुक आफ्टर करें। सो कमिंग बैक टू मिस नमिता, मिस नमिता, लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक व्हेन पीपल टॉक अबाउट आयुर्वेद, तो सबसे पहले उनके दिमाग में जो एक क्वेश्चन आता है, एक सवाल आता है कि अरे कोई चूरन होगा, कोई इस तरह की दवाई खिला देंगे या कुछ इस तरह के, पीपल आर वेरी स्कैर्ड। लोगों को बड़ा डर लगता है क्योंकि कई न्यूज़पेपर्स में इसमें लोग पढ़ते हैं कि अरे वो लोग दवाई खिला के करते हैं। सो सिंस यू हैव डन द कोर्स एंड यू नो एग्जैक्टली कि वो हाउ डज इट वर्क, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताइए दैट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग अबाउट द इनसाइट्स एंड द लर्निंग्स। Doctor, actually, the herbs which are present in the kitchen only, they had incorporated and explained that this is only your medicine. You don't need any churan, bahar se koi medicine. In fact, I asked for my calcium and I asked for my कि मुझे विटामिन डी चाहिए, तो दे सेड कि अपने मिल्क से और धूप से ही विटामिन डी को पूरा करो, यू डोंट नीड एनी मेडिसिन, कोई गोलियों की जरूरत नहीं है। एंड यस, देयर आर आयुर्वेदिक फ्यू मेडिसिन लाइक कंचनारा, गुगलू एंड ऑल फॉर द thyroid thing, so that they had advice, and that is very simple medicine, koi churan nahi, ek goli hai choti si, and you can have that and you're sorted, you're done. So I'll come to Mrs. Aslam again. कि कई लोग घबराते हैं कि क्योंकि नेचुरली कई लोगों को आयुर्वेद का इतना मालूम नहीं है और वैदिक न्यूट्रिशन का इतना मालूम नहीं है। बट एक छोटा सा मैं आपको पर्सनल एनेक्डोट बताऊंगी। व्हेन आई वाज यंगर, व्हेन आई वाज स्मॉल, व्हेन आई वाज इन स्कूल, सो उस टाइम मुझे कई बार नज़ला जुकाम होता था, एंड माय मॉम डिडंट वांट टू गिव मी टू मच मेडिकेशन बिकॉज शी डिडंट वांट कि इतने कम उम्र से दवाई खाई जाए। सो पहले तो होम्योपैथी का कुछ स्टार्ट किया, एंड फिर जब जैसे विंटर्स में कई बार बढ़ जाता था
सो फाइनली आई स्टार्टेड जोशांदा, और शायद जोशांदा आपने कभी शायद सुना हो, नहीं सुना हो. सो इट इज बेसिकली हर्ब्स. ये कुछ तरह के हर्ब्स होती हैं जिसको आप उबाल के आप उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं. हाँ एंड जी, यू वुड नॉट बिलीव इट. आपने असलम, मिसेस असलम, आपने सुना है जोशांदा का नाम? हाँ जी, हाँ जी, हमने जी बचपन मैम, में सुना बहुत है, लिया भी है. बहुत लिया है हम इसको गर्म ब्रेड का पानी में. जोशांदा बहुत फेमस था, तो वो जब हमें जुकाम होता था तो हमारी मॉम भी हमें दिया करती थी. जी. तो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि एज अ चाइल्ड जब मैंने वो जोशांदा पीना शुरू किया, और वो कुछ नहीं चाय की तरह लगता था, कुछ ऐसा लगता भी नहीं था, टेस्ट भी ठीक ठाक था, और उससे मेरा जुकाम ठीक होना शुरू हो गया. और 2-3 साल में तो आई वुड से कि होता ही नहीं था. ऑफ कोर्स हाँ, कभी गलती करी, आइसक्रीम खा ली, दही रात को खा ली, ऐसी चीजें करी तो आ जाता था, बट अदरवाइज नहीं होता था. एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग एज अ चाइल्ड कि इतनी छोटी सी चीज से, मतलब इतनी सिंपल, नॉट छोटी बट इतनी सिंपल चीज से मेरा इतना जो प्रॉब्लम हो रही थी, जुकाम हो रहा था, साइनस हो रहा था, वो सब खत्म हो गया. दैट मीन्स कुछ तो ऐसी चीजें होती होंगी किचन में जिससे कि यू स्टार्ट बिकमिंग हेल्दी. एंड देन slowly slowly my interest started coming in natural healing, natural health, and natural healing and health में मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ. एंड when I finally joined medical college, मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि ठीक है, हमें दवाइयाँ पता है क्या देनी है, हमें पता है कि इसके लिए क्या एंटीबायोटिक देना है, इसके लिए क्या पेन किलर देना है, और किस डिजीज के लिए क्या दवाई देनी है. बट बैक ऑफ द माइंड आई यूज्ड टू थिंक कि जो नेचुरल हर्ब्स हैं, अगर हमारा पेशेंट वो भी साथ साथ ले, तो हो सकता है हमें बहुत ज्यादा मेडिकेशन ना देनी पड़े, हमें बहुत ज्यादा ओवर मेडिकेट ना करना पड़े पेशेंट को. और ये जो एक आइडिया, एक ख्याल है, वो चलता रहा. जो फाइनली जब मैं आई वाज वर्किंग इन जीबी पंत हॉस्पिटल इन द आईसीयू, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जाके कल्मिनेट हुआ कि ये सारी चीजें जो घर में मौजूद हैं उन्हीं को कैसे इस्तेमाल किया जाए. सो अनदर क्वेश्चन व्हिच आई हैव इज कि लाइक नॉर्मली व्हाट पीपल सेज कि खा लो या ये कामला खा लो, बट इससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप एक मल्टीविटामिन ना खाओ. सो मिस नमिता, व्हाट इज नाउ योर एक्सपीरियंस सेइंग कि लोगों को लगता है ये तो बड़ी हल्की फुल्की चीज है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैम एक्चुअली जो आपने बुकलेट प्रोवाइड करी थी उसमें सारे बेनिफिट्स दिए थे कि इम्यूनिटी बूस्टर किस हर्ब से, किस स्पाइस से हम उसको अगर डेली फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में, और छोटी छोटी चीज़ें जैसे अदरक हो गए, काली मिर्ची हो गई, कई चीज़ें जैसे हर्ब्स बताई गई, स्पाइस बताए गए, हल्दी जैसे मैम जैसे बताए गए कि अगर जैसे हमने इनकॉर्पोरेट करें अपने छोटी छोटी चीजें, तो कैसे हम लोग अपने ये डिजीजेस हैं जो नॉर्मल कोल्ड फ्लू ये होता है, ये कैसे ठीक कर सकते हैं, और इम्यूनिटी कैसे अपनी वी कैन बिल्ड अप एंड यू कैन यूज इट. सो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैम मैं भी होम्योपैथी में ही बिलीव करती थी, लेकिन जब से ये मैंने कोर्स किया है तो आई एम मोर इनटू आयुर्वेदा नाउ रादर देन होम्योपैथी को. जाके मैं किचन से ही सारे हर्ब्स निकाल के अपने बच्चों को उससे क्योर कर लेती हूँ, खुद को भी, फैमिली मेंबर्स को. सो वंडरफुल, ये इस कोर्स ने मुझे दिया है मैम, एक गिफ्ट दिया है. वंडरफुल, वंडरफुल. And Mrs. Aslam, I'll come over to you, and then I think Ashima, you have some questions from the audience. So, Miss Aslam, like जब हम बात करते हैं अपने किचन के हर्ब्स की, तो आई एम श्योर आपकी नानी, आपकी दादी ने भी कई हाँ चीजें जी. बताती होंगी. तो बट आज अब आपने खुद फॉलो किया है, आज आप खुद उसको एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, क्योंकि किसी चीज को महसूस करना और किसी चीज को सिर्फ जानने में बहुत फर्क होता है. कि एक इन्फॉर्मेशन होती है ये और एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी वो नेचुरल जो मतलब चीजें होती हैं उसी से हमारा ट्रीटमेंट करती थी. उदार. कि वो पेट में दर्द हो तो वो पुदीना और की चटनी वो बना के दे दी. पेट अगर लूज मोशन है तो पुदीने के साथ एक छोटी इलायची, वो कार्डमम, ग्रीन कार्डमम जो होती है वो पीस के देती थी. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हर्ब्स. कभी हमें कोई बॉयल हो जाता था तो वो जो इसके कैस्टर के जो पत्ते लीफ होते हैं उनको घी में वो हल्का सा वो उसको गर्म करके उस पे चिपका देती थी तो वो अपने आप ठीक हो जाता था. तो ये सब चीजें मैंने मतलब फील की हुई है. दादी हमारा वैसे, मुझे भी बहुत जुकाम होता था तो मुझे दादी आलमंड को रात में वो भिगो देती थी और सुबह पत्थर के ऊपर उसको घिस के और वो मिश्री के साथ दिया करती थी मुझे. तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ था. तो ये सब चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है, बचपन से एक्सपीरियंस की हैं. और हम मतलब अपने किचन से अपना काफी कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं.
पेट दर्द है तो अजवाइन का पानी पी लिया या अजवाइन का पाउडर खा लिया, ऐसे करते हैं। और कलौंजी जो ये अनियन सीड्स होते हैं, उनका तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। वो मतलब कहते हैं कि वो अगर एक चुटकी डेली खा लो, ज्यादा नहीं खाना है, सिर्फ 1 पिंच, तो आपकी बहुत सी बीमारियां उससे दूर हो जाती हैं। जी, तो जैसे आपने बहुत पहले खूबसूरती से कहा कि जब धीरे-धीरे हम अपने जो एक ट्रेडिशनल साइंसेस हाँ हैं। जी, हाँ जी, उसकी तरफ अब हमारा इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। बीच में हम जैसे वो ये ज्यादातर वो मतलब दवा, और हम क्विक हीलिंग पे बिलीव करने लगे हैं अभी जो है, वो मतलब थोड़ा भी पेन नहीं लेना चाहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए। हालांकि वो, आप अगर बीमार पड़ते हो तो आपकी इम्यूनिटी है ना बूस्ट होती है उससे, तो ये चीज लोग नहीं समझते हैं। तो अब धीरे धीरे, पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे ये सब चीजें समझ में आ रही हैं जी, कि आप काढ़ा काढ़ा से भी जुकाम दूर कर सकते हो। पेट में दर्द है तो आप कुछ नेचुरल, आपके पास जो हर्ब है उनको ले लो। तब धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। जी, तो बिल्कुल। So I think Ashima, you have some questions. You want to go ahead? Sure. So I have one question for Dr. Reena, which is specifically related to hypothyroid and hair fall. So there is a client who is mentioning that she has hypothyroid for last 25 years, and because of that, she is, having this hair fall problem. So what is the solution? Yeah. So first thing is, as I have mentioned earlier, कि त्रिफला आपको जरूर incorporate करना है, because इसमें good quantity में vitamin C आपको मिलेगा. So trifla is something that he can incorporate in the diet. Second thing which is good for your hair is basically in thyroid patient there is a lot of dryness in your body. So I would suggest to incorporate flax seeds or any other seeds, like pumpkin seeds are there and sesame seeds are there, because these seeds are basically contains natural oils. So it is very good to consume 1 teaspoon of seeds in a day regularly. If you don't like the taste of seeds, you can sprinkle it over your salads and then you can have it. But consume, seeds in your diet, because that is very good for your hair fall problem. And third thing is, make sure you take enough of protein in your diet, because Indian diet mostly, if you are especially vegetarian, so it does not contain, the exact amount of protein. So how much protein do you need is basically for an adult, you need if you are 70 kg, your weight is 70 kg, so you need 70 gram of proteins every day. But if you are having this hair fall problem, so you need to increase it a bit so that you consume around 100 grams of protein in a day. And that too contain, like if you are a vegetarian, you should incorporate pulses in your diet, a lot of like kala chana, rajma, these are very good sources of protein. And apart from that, like paneer can be also consumed, like if you are having a thyroid problem. Just avoid soya and tofu, because for thyroid patients, we don't recommend these things. And yeah, so these are the things that you can follow. Sure. Thank you, Dr. Reena. So here comes my next question from your first answer. So what are the ingredients of trifla? Yeah. So trifla, as the name suggests, it contains 3 fruits. Okay, 3 means 3, and phala means it has 3 fruits, which is, one is amla, second one is bibhitaki, and third one is haritaki. Sure. So I have another question. So say, for example, since today's webinar is about hypothyroid, so one person is asking, so the person has thyroid as well as diabetes, along Yeah. with that joint pain issue. So does the diet provide a facility in which all 3 of the conditions could be solved simultaneously? Or is it one specific Yeah. medical No. issue? to work on? Yeah. So if you see, like, all these conditions are related to our lifestyle, whether it is joint pain or hormonal imbalance, or, the things, diabetes that you have suggested. So basically what happens, like in all these kind of diseases, what happened, the food that we are consuming, like the way we have, stated in the early of this session, कि जब हम अपनी बॉडी को नरिशमेंट देंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, प्रोटीन, सो ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉडी है इट स्टार्ट्स नरिशिंग. But the moment we start feeding our body with preservatives, coloring agent, with pesticides and unhealthy food, like deep fried food and refined oils, excessive sugar, excessive salt, so basically what happen, our body get disturbed, because
body is happy with the healthy diet, not with the unhealthy food. So if you have all these multiple conditions and still you want one solution to that, so just shift your, shift to the basics, like incorporate whole grains in your diet instead of just having refined flour or only wheat flour. There are multiple grains which are available. Similarly, incorporate more of fruits and vegetable in your diet. More of means at least 3 servings of fruits and 3 servings of vegetables in a day. Okay, it should not be like 1 apple a day, or it's like 1 cucumber a day is not sufficient. So if you are having these kind of lifestyle disorder and you increase the quantity of fruits and vegetables in your diet, and of course water intake is one thing, like at least 10 to 12 glasses of water in a day. So these are the basic rules that can be followed in any of the lifestyle disorders. Sure. So another question is, what are the benefits of Balance Pro? So Balance Pro is basically like, as we are talking about proteins. So protein is the building block of your body, and your skin, hair, nourishment is also with the protein. So Balance Pro is basically a plant-based protein, and it is free from gluten. So like some people having gluten, allergies, they can also have this protein. And it is a plant-based protein which is made up of rice and pea protein in it. So this protein is very effective, like, if a person wants to lose weight, so, this protein powder can be incorporated as a replacement for your dinner. Along with a bowl of salad, you can have it. Similarly, if you have hair fall problem, then you can consume it like once a day, 2 scoops of Balance Pro once a day, it can be consumed. So Balance Pro is something that can be taken as a regular, meal, like a protein meal in a day. Sure. So I will take just one last question, and I have many more questions in the chat. So I request everyone, if you want to have one free consultation, you can drop your phone number in the chat box. We'll arrange after this session. So Dr. Reena, so one last question is, some herbs for healthy skin and hair. Yeah. So herbs like vitamin C is something that can be consumed, because vitamin C improves your overall, nourishment to your body. So that can be consumed. Like amla is one thing that I have told you, because amla is worked as a rasayan. So it, improves the texture of your skin and hair. Then nuts and seeds, because vitamin E is very important, when it comes to your skin health, hair health. These are the things which are very important. Then Himalayan berry. So Himalayan berry are basically also called, it is called sea buckthorn. So these are the berries which are found in high altitudes, and these berries are rich in antioxidants. So sea buckthorn can be consumed like for skin and hair, if somebody is having these kind of issues. Sure, thank you. And just wanted to cover this up. There are few people who want to understand about how they can analyze their body type. Like Ms. Namita has been mentioning about that one kind of food is not suiting to everyone. So I just want to share a screen with you. So you can download the Vedic Diet app, and this is for free, available on iOS as well as Android. You can check your body type for free. There are other things as well, which is like recipes, nutrition plans, which you can explore, understand, this is your body type. Apart from that, if you do have your blood test reports, because many of you have thyroids, you can upload those blood test reports in the app, and you will get beautiful insights related to those, the deranged parameters and which herbs you should take. So you can note down this, and this app is completely free. So you can download this and explore this. Now with this, towards the closing of the session, I would like to take final comments from all of the panelists. So we'll start with Dr. Shikha Sharma first. So what are your final comments? I would say that this last year has taught us that we must honor our bodies, and health is wealth. If health is there, then everything is, we can enjoy, we can have fun. But if health is not there, then everything is not enjoyable. Life is not real. So honor your body, and that's all I would say. Ms. Namita? I think you're on mute. Wait. Okay.
ये आपने I क्या just wanted to पूछा? first. हेलो, Hello, Miss Aslam. So we are taking final comments. So we अच्छा are फाइनल कमेंट्स यही है कि वो मतलब अभी मैं काफी एनर्जेटिक फील करती हूँ। नहीं तो पहले कोई भी काम करती थी तो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती थी, और अभी वेट लॉस की वजह से काफी एनर्जेटिक फील करना कर दिया है मैंने। तो काफी मुझे मतलब काफी बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए वेट लॉस का जो प्रोग्राम है। और बाकी तो कुछ अगर मुझे कंसल्ट करना होगा तो मैं डायरेक्ट डॉक्टर से कर लूंगी। तो फाइनल मतलब फीडबैक मेरा यही है कि Sure. मैं आपके प्रोग्राम से बहुत साथ हूँ। Sure. Thank you, Miss Aslam. Yeah, Miss Navita. So your final comments. थैंक यू। Yeah, my final comment is first I want to thank you everybody who's Neetu first of all who directed me to this course, and all the doctors and Dr. Shikha Sharma first. And I just want to conclude that if you love your body and you want to prevent yourself, actually there are 3 stages. Like first thing, एक आपके हल्की सी disorder आती है, वो toxin बन जाता है, फिर वो disease बनता है. So if you don't want to go to that level जो disease बन जाए और उसके बाद हम पछताएं, so I think in order to understand your body, we must. I really benefited from this course, so I would advise all of you to take up this course and know your body. Thank you. Thank you, Miss Navita. Dr. Reena. Yeah, so I just want to say all the viewers that if you want to follow a healthy diet and lifestyle, so there is no need to change your complete routine. So even if you incorporate the basics that we have discussed today, like 4 or 5 things, or maybe just 2 things you can start with, and the moment you start seeing the changes in your body and mind, then that is going to give you motivation to start eating more healthy and to make healthier choices in your life. Sure. Thank you, Dr. Reena. So with this, we'll end up the session today. We'll meet next Wednesday with new set of panelists discussing a new topic. Thank you, everyone, for joining the session today. Thanks, Ashima.